Good morning, students. Welcome to the another session of Information and Technology. Yesterday, we have started a new lesson, that is database. And in the first session, we saw that what is database, what is DBMS, what are the different benefits of database, and we got a basic introduction about the database, like what is data integrity, data sharing, data redundancy, interactive interface, all of these things we have seen. Now the PDF which you are getting in front of you in this screen, this is the PDF from the chapter given in the new edition of book. In the old edition, which is having by most of the student, having only one chapter in database. In new edition of book, there are two chapters of database. Few topics have been revised, or I would say added into this new edition as per the revised syllabus of CBSE. Like as always, please do not get panic in case you do not have the new edition of book. We are giving you the material on a frequent basis, and based on that we are giving you the content or the material for the chapters. टॉपिक्स बहुत सारे सिमिलर है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं. So instead of bothering about all these things, please focus what we are going to study. Most of the things we have already covered. This database is very important. Now listen. What we have learned in the last class, a database is a collection of data in an organized structure, and that organized structure in the form of a table. When we talk about table, we are talking about a structure of row and column. जब बहुत सारे कॉलम हैं, बहुत सारे रोज हैं, उनसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग एक टेबुलर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया. फिर हम लोगों ने डीबीएमएस के बारे में बात की. एक टूल है जो डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है. किस तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है? डेटाबेस को क्रिएट करने में, डेटाबेस को डेटा स्टोर करने में, डेटाबेस को मॉडिफाई करने में, डेटाबेस को अपडेट करने में, इवन डेटाबेस को डिलीट करने में. उसी में एक आर वर्ड ऐड हो गया, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि आपका जो काम है, आपका जो पर्पस है, डे टू डे लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, वो अच्छे तरीके से पूरा हो सके. Now, the thing that we are going to start today, that is elements of database. What we have learned, what is database, what is DBMS, what is RDBMS, and what are the different benefits of DBMS. And at the same time, we have also seen the evolution of DBMS. कि किस ट्रांजिशन फेज के साथ काम करता है डेटाबेस, या उसका डिजाइनिंग किस तरह से होता है. अब जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस के बारे में, you need to focus, you need to remember, you need to recall in your mind, we are talking about the basic components that makes up a database. तो हम लोगों ने जैसे शुरू में मैंने आपको कहा कि database is a structured collection of data. How that structured or organized collection of data is getting stored? In the form of a table. So the very basic component, the first component that we talk about a database is table. आप डेफिनेशंस को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी. हो सकता है आप याद कर लो, आप लिख भी लेंगे, बट आई सजेस्ट एट ऑल टाइम प्लीज ट्राई टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक सो यू कैन डिजाइन और यू कैन ड्राफ्ट समथिंग विच कैन नॉट बी डिनाइड बाय एनी एग्जामिनर दैट okay, no, this is not a correct answer. They have to accept whatever you have written, that is up to the point, that is technically correct, and you will get the full marks. So a table is a container. A table is a structured container in which data gets stored. And the data gets stored in the form of row and column. So the rows that we have in each and every table, उसी rows को हम लोग records कहते हैं. So that is why the first sentence of this definition in table you will find, a table is a collection of logically related records. मतलब जब भी हम लोग टेबल में डेटा स्टोर करते हैं तो वो डेटा लॉजिकली रिलेटेड रहता है, वो रैंडम डेटा नहीं होता है.
ठीक है, कहने का मतलब है एक टेबल में बना रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल करके, तो मैं उसमें जितने भी डिटेल्स स्टोर करूंगा वो सारे डिटेल्स किसी स्टूडेंट्स को बिलोंग करेंगे and they are logically related with each other. So a table is a collection of data which is logically related to each other. A table is a container which stores data in an organized structure. A table is an object of database which stores data in an organized structure in the form of row and column. अब अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको डेफिनेशन को. 9, जैसे मैंने कहा कि टेबल में होता क्या क्या है, एक रो और कॉलम. वो कॉलम और रो का नंबर डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके सिचुएशंस के हिसाब से. तो उसी कॉलम को हम लोग बोलते हैं फील्ड. ए फील्ड इज बेसिकली रेफर्स टू द कॉलम क्रिएटेड इन ए टेबल. लेकिन आप बुक में अगर देखोगे तो लिखा हुआ है कि ए फील्ड रिप्रेजेंट वन रिलेटेड पार्ट ऑफ ए टेबल, इट कंटेन द लॉजिकली रिलेटेड डेटा कंटेन इन डेटाबेस. आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होगा ये है क्या, इसको टेबल के फॉर्म में देखिए. आपके बुक में एक आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह से एक टेबल जिसमें कॉलम है एज, नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड फोन नंबर. सो ऑल दीज थिंग्स दैट लाइक द एज, नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, फोन, these are filled. Filled refers to the column created in a table. और इसको डिफाइन क्या किया गया है कि a field represent one related part of a table and which contain logically related data. कहने का मतलब है कि मेरे अगर किसी भी टेबल में, किसी भी सिचुएशन में, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कहीं पर भी टेबल क्रिएट कर रहे हो, if there will not be any field, how we will come to know what we are supposed to enter in the table? So a table field means a column in a field gives an idea that what are the type of value, what are the things that supposed to be stored in that table. हमें दिखा कॉलम का नेम है एज, यानी हमें समझ में आ जाता है कि वी हैव टू गिव द एज ऑफ द कैंडिडेट और द कंसर्न पर्सन, तो वो वैल्यू न्यूमेरिकल होगा. इफ वी हैव सीन नेम, it means we are supposed to enter the name. Address, we are supposed to enter the address of that particular person whose name has been given. Designation means the designation of that person only whose name has been entered in the name. So this is how they are logically related. मतलब चाहे वो एज हो, एड्रेस हो, डेजिग्नेशन हो, फोन हो, फर्स्ट रो में किसका है, सिर्फ और सिर्फ एंडी का है. सेकेंड रो में अगर देखेंगे तो HB road, clerk, the phone number, the age is 50. That is the data of, or the data belongs to whom? James. So a field is something which makes it possible to decide that okay, these are the data which we are supposed to enter in a table. So this is a field is basically refers to a column. A field refers to a column created in a table. तो आपको इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्क्रीनशॉट दे दिया जाए टेबल का, देयर आर हाउ मेनी फील्ड इन दिस कॉलम टेबल, सो यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ कॉलम. नाउ रिकॉर्ड, अगर आप रिकॉर्ड के डेफिनेशन को देखेंगे दैट यू विल फाइंड a record is a collection of multiple data which are stored in a related field that can be treated as a single unit. मतलब रिकॉर्ड एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जो एक दूसरे से रिलेटेड भी है और उसको एज ए सिंगल यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं. अब इसको समझिए, एक टेबल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जिसमें 5 फील्ड्स आर देयर. नाउ फ्रॉम द सेकेंड रो, ठीक है, कॉलम नेम लिखा, उसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट रो स्टार्ट हुआ है, सॉरी नॉट सेकेंड रो, फर्स्ट रो, वो क्या है, 22, एंडी, न्यू मार्केट लेन, अकाउंटेंट, फोन नंबर. तो जो ये सेट ऑफ वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दैट सेट ऑफ वैल्यू इज ए सिंगल रिकॉर्ड. अब जो नेक्स्ट रो पे जा रहे हैं 50, जेम्स, HB रोड, क्लर्क, द मोबाइल नंबर इज देयर, दैट सेट ऑफ वैल्यू इज अनदर रिकॉर्ड. Then 27, Sandra, New Fashion Street, cashier, then mobile number, that set of value is a third record. Similarly the next one is another record. तो इस पर्टिकुलर टेबल में आप अगर काउंट करोगे तो रो आपको 5 दिख रहा होगा, लेकिन फर्स्ट रो में हम लोगों ने क्या दिया है, कॉलम का हेडिंग, फील्ड्स का नेम, ठीक है. तो बाकी के जो 4 रो हैं वो क्या है, रिकॉर्ड्स है. सो इफ you have a question in the examination after getting a screenshot that there are how many fields, 5 fields. There are how many records in this table, 4 records.
आप देख सकते हैं राइट साइड में लेबलिंग किया हुआ है। आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड फील्ड, देन यू नीड टू सी एड्रेस। फील्ड में ध्यान रखना है कॉलम, रिकॉर्ड में ध्यान रखना है रो। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिमाग में कभी आप मिस नहीं करोगे। डेफिनेशन टेक्निकली जो भी हो, थोड़ा इजी लगे कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन अगर आप एक इन जनरल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो दिमाग में इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, when we talk about field we are talking about the vertical structure of a table, we are talking about the column, and when we talk about record we are talking about the records or the row that is there in the table, the horizontal set of boxes. ठीक है, so these kind of questions comes, how many fields are there, how many records are there. Once again, a database has three major component. Number one, table. टेबल होगा नहीं तो डेटाबेस होगा ही नहीं। एक ही टेबल क्यों ना हो, लेकिन टेबल होना जरूरी है। एक से ज्यादा टेबल, 2, 3, 4, 5, जरूरत के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्यूम के हिसाब से, डेटा के साइज के हिसाब से, कहीं पर भी ऑर्गेनाइज नंबर ऑफ टेबल ज्यादा हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि डेटाबेस हैज थ्री मेजर कंपोनेंट, वन इज टेबल, वन इज फील्ड, वन इज रिकॉर्ड. A table is a container which stores data in a logical structured form. A field refers to a column created in a table. A record, a set of value stored in a row. ठीक है, set of value stored in a row. Field is column, record is row. ठीक है, उस तरीके से आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं. Now, relationship और RDBMS, इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ RDBMS वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कोड इन द ईयर ऑफ 1970 इन IBM. ठीक है, RDBMS में मैंने क्या बताया, DBMS में बस एक R ऐड हो गया है. मतलब एक इस तरह का कॉन्सेप्ट, एक इस तरह का टूल जो आपके डेटाबेस के बीच में स्टैब्लिश करने में हेल्प करे. क्या स्टैब्लिश करने में? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में, जिससे कि आपका डेटा ज्यादा अप टू डेट हो, ज्यादा सिमेट्रिक हो, ज्यादा एफिशिएंट हो सबके लिए. ठीक है, लाइक वेरी सिंपल एग्जांपल, आपकी एग्जांपल बुक में भी जो आपका दिया हुआ है उसी को मैं आपको थोड़ा सेलिब्रेट करता हूँ. देन आई विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, देखिए एग्जांपल में जिसे दिया हुआ है कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डेटाबेस. किसी भी नाम से डेटाबेस बना हुआ है. मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम है XYZ कंपनी, तो उन्होंने एक डेटाबेस बनाया XYZ डेटाबेस के नाम से. Now in that database they have three tables. One is employee table, one is salary table, one is attendance table. In the first table, in which they have stored all the details of employee, the name of the employee, the code which is given by the company or employee ID, the address of the employee, the designation of the employee, the date of birth or other contact details, these details which is necessary for any individual profile. सेकेंड डिटेल सैलरी में क्या है, एम्प्लॉय का कोड है, उसकी बेसिक सैलरी है, PF है, HRA है. ये एक सैलरी का स्ट्रक्चर है, ये सैलरी के कंपोनेंट्स है, जिसको बारे में आपको अभी मैं फिलहाल नहीं समझा सकता. इनको मान लीजिए ब्रेकअप समझ लीजिए. ठीक है, एक सैलरी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है. बेसिक सैलरी का परसेंट PF के अमाउंट में जाता है. बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट HRA यानी हाउस रेंटल अलाउंस के फॉर्म में मिलता है. PF यानी प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में मिलता है. उसमें DA होता है, डियरनेस अलाउंस, बहुत सारी चीजें होती है. तो फर्स्ट टेबल इज द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय, सेकेंड टेबल इज द डिटेल अबाउट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, एंड थर्ड टेबल अबाउट द अटेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, हाउ मेनी डेज ही इज कमिंग टू वर्क इन ए पर्टिकुलर मंथ. नाउ टू जनरेट द पे स्लिप ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब किसी भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में कोई भी काम करता है तो मंथ एंड में उनको पेमेंट आने के बाद उनको एक पे स्लिप दिया जाता है, या किसी किसी इंस्टीट्यूशन में साल के अंत में दिया जाता है. पे स्लिप में वो सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉय ने कितना दिन अटेंडेंस बनाया यानी कितने दिन वो महीने पे काम पे आया, उसकी क्या सैलरी बनी, उस सैलरी में ब्रेकअप वाले सैलरी रहेंगे, PF रहेगा अलग से, बेसिक रहेगा, HRA रहेगा, और टेक होम सैलरी यानी उनको इन हैंड सैलरी क्या मिली. So pay slip is basically a kind of statement given by the company to the employee that this staff or this employee is working in our organization and this is what he is getting from our side. एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में मिल जाता है रिकॉर्ड एक एम्प्लॉय को एक पे स्लिप से. तो कहने का मतलब है कि पे स्लिप को जनरेट करने के लिए वहां पर
एक कंपनी क्या करती है, इन तीनों टेबल से कुछ कुछ कॉलम उठा लेती है। जैसे फर्स्ट टेबल से एम्प्लॉय नेम उठा लिया, सेकंड और एड्रेस उठा लिया, सेकंड टेबल से बेसिक पे और एचआरए उठा लिया, और थर्ड टेबल से अटेंडेंस उठा लिया। और ये कुछ कुछ कॉलम को यूज कर रही है, ना कि सारे कॉलम को यूज कर रही है। और कुछ कुछ कॉलम को यूज करके एक फाइनल टेबल जनरेट कर दे रही है पे स्लिप के नाम से। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ आरडीबीएमएस। तीनों टेबल की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, लेकिन तीनों टेबल में कुछ ऐसे कॉलम हैं जो कॉमन है, कुछ ऐसे कॉलम हैं जो कि तीनों टेबल में है। और जब हमें फाइनल रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है तो हम उन स्पेसिफिक कॉलम को यूज करते हैं और एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, ये इंटर रिलेटेड डेटा जो एक दूसरे के साथ है, टेबल ए के बीच में, टेबल बी और टेबल सी के बीच में, ये पॉसिबल हो पाता है किसके कारण? आरडीबीएमएस के कारण, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं आपको रिलेशनशिप के 3 टाइप आपकी बुक में दिए हुए, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। ठीक है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 टेबल है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 टेबल है। एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेता हूँ। एक एम्प्लॉय का पर्सनल टेबल है, एक टेबल है टेबल ए पर्सनल टेबल, और एक टेबल बी है एम्प्लॉय पे स्लिप टेबल। पर्सनल टेबल पे सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स है एक एक करके। उसमें से एक कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है एम्प्लॉय आईडी। उसमें एम्प्लॉय आईडी में E001, E002, E003 इस ऑर्डर में उसका सारा डिटेल्स स्टोर किया हुआ है। और एम्प्लॉय पे स्लिप बोल के जो टेबल है उसमें सिर्फ 2 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी क्रेडिटेड। तो एम्प्लॉय आईडी में भी E001, E002, E003 और सैलरी क्रेडिटेड में कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर टेबल ए और टेबल बी के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी वो 1 to 1 की होगी। क्यों? क्योंकि टेबल ए का 1 रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू ओनली 1 रिकॉर्ड ऑफ टेबल बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, टेबल ए का 1 रिकॉर्ड, टेबल ए का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो टेबल बी के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड से ही डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। क्योंकि जो सेकंड रिकॉर्ड है, थर्ड रिकॉर्ड है, वो दूसरे एम्प्लॉय का है, दूसरे एम्प्लॉय आईडी का है। तो 1 to 1 relationship is basically when there are 2 table A and table B, and 1 record of table A is related to, dedicated to only 1 record of table B. So this is called 1 to 1 relationship. अब बात करते हैं 1 to many के बारे में। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। अच्छा, फिर इसको रिकॉल करता हूँ, फिर दोबारा रिकॉल करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। 1 to many की बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट, मान लीजिए अमेजन। उसमें लाखों कस्टमर होंगे, उनके करोड़ों कस्टमर होंगे। हर कस्टमर की अपनी एक आईडी है। ठीक है, तो वो सारे कस्टमर्स का डिटेल्स किसी टेबल में, मान लीजिए उन्होंने 2 टेबल फिर से बनाया है। ठीक है, कस्टमर डिटेल, ऑर्डर डिटेल। टेबल ए इज कस्टमर डिटेल, टेबल बी इज ऑर्डर डिटेल। नाउ कस्टमर डिटेल में दे हैव ओनली 1 रिकॉर्ड और 1 डेडिकेटेड रिकॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर। अमेजोन के जितने भी कस्टमर है उन सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड उन्होंने ऑर्डर कस्टमर डिटेल नाम के टेबल में स्टोर कर दिया है, जिसमें एक रिकॉर्ड एक डेडिकेटेड यूजर को, एक यूजर को डेडिकेटेड है। अगर वो यूजर दूसरे आईडी से ज्वाइन कर रहा है, दूसरे ईमेल आईडी, दूसरे मोबाइल नंबर, तो उसके लिए 2 रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कस्टमर को मान लीजिए एक आईडी जनरेट हो गया C001, और ऑर्डर डिटेल में क्या है कि उसके कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं एक पर्टिकुलर मंथ में। तो ऑर्डर डिटेल में जब वो जा रहे हैं तो वहां पर उन्होंने 2 कॉलम यूज किया हुआ है, कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर नेम। तब ऑर्डर डिटेल में हो सकता है कि जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, मतलब जो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि 2 टेबल है, ऑर्डर कस्टमर डिटेल एंड ऑर्डर डिटेल। कस्टमर डिटेल में E01 करके एक ही आईडी मिलेगा, सॉरी C001 करके एक ही आईडी मिलेगा। लेकिन जब ऑर्डर डिटेल्स वाले टेबल में जा रहे हैं तो उनको कस्टमर आईडी C001 मल्टीपल टाइम दिख रहा है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर मंथ में एक से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। तो C001 वाले जितने भी ऑर्डर हैं वो किसने ऑर्डर किया है? C001 आईडी वाले ने। तो वन टू मेनी, दिस इज कॉल्ड वन टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, in each cases we are having only two table A and table B। जब टेबल ए का एक रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टेबल बी के एक ही रिकॉर्ड से रिलेटेड करता है, अपने आप को रिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप। जब टेबल ए का एक रिकॉर्ड टेबल बी के बहुत सारे रिकॉर्ड से मैच करता है, रिलेट करता है, तो हो गया वन टू मेनी। अब मेनी टू मेनी की बात करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, फिर से उस कंपनी में उन्होंने एक टेबल स्टोर किया है, डिटेल क्रिएट किया है एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, उन्होंने टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय के नाम से। उसमें उन्होंने कॉलम रखा है एम्प्लॉय आईडी, देयर नेम एंड प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, देयर नेम एंड प्रोजेक्ट नंबर, और एक रो में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नंबर जाएगा। तो एम्प्लॉय आईडी मान लीजिए उन्होंने लिखा हुआ E001, नेम सपोज XYZ, प्रोजेक्ट नंबर 5, E001 XYZ, प्रोजेक्ट नंबर 11, E001 XYZ, प्रोजेक्ट नंबर 12। ये है आपका टेबल ए का डेटा। ठीक है, वेट अ मिनट। देखिए, मुझे लगा कि मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा अगर आपको क्लियर नहीं है। ये वन टू वन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। एक टेबल आपको दिख रहा है पर्सनल टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी 10, एम्प्लॉय आईडी 12, एम्प्लॉय आईडी 15, एम्प्लॉय आईडी 16, 19। मतलब आपको एम्प्लॉय आईडी में एक ही आईडी दिख रहा है, उनका डिटेल्स है। और उनका एक पेरोल करके टेबल बना हुआ है, सेकंड टेबल, एम्प्लॉय आईडी एंड देयर पे रेट। यानी जो एम्प्लॉय आईडी 10 के लिए है, हम लोगों ने वो देखिए एम्प्लॉय आईडी 10 के नाम से एक ही रो है सेकंड टेबल में भी। यानी जो आपका फर्स्ट रो है, ये जो रो है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट करेगा अपने आप को? इस रो से। यानी दिस इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप। ये जो सेकंड रो है एम्प्लॉय आईडी 12, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 12 से ही अपने आप को रिलेट करेगा। दिस इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ वन टू मेनी, दिस इज एम्प्लॉय कस्टमर डिटेल, कस्टमर आईडी देखिए 20151 20493, ये 201451 का डिटेल स्टोर है। ठीक है, अब आपको सेकंड टेबल में देखिए, ऑर्डर नाम के टेबल में 20151 नाम का कितना दिखेगा आपको? देखिए 3 दिख रहा शुरू में। यानी 20151 ने कितने ऑर्डर प्लेस किए? 3। यहाँ पर है 1 कस्टमर डिटेल है, लेकिन यहाँ पर क्या डिटेल है? ऑर्डर डिटेल। सो दिस इज कॉल्ड वन टू मेनी। आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड मेनी टू मेनी देखिए, ये है एम्प्लॉय डिटेल, जिसमें एम्प्लॉय आईडी 26 26 26 3 बार है। ओब्रायन सीन ओब्रायन, उनका प्रोजेक्ट नंबर ये असाइन है 452 457 124, इस तरह से प्रोजेक्ट नंबर उनको असाइन है। ठीक है, एम्प्लॉय में आपको मल्टीपल एक ही आईडी का मल्टीपल कॉपी दिख रहा है 26, सारा कुछ सेम है, बस आपको डिफरेंट मिलेगा लास्ट कॉलम में उनको क्या क्या प्रोजेक्ट नंबर असाइन है। और एक सेकंड कॉलम सेकंड टेबल देखिए इनका 452 प्रोजेक्ट क्या था? वुड वर्किंग अराउंड द हाउस। उसको किस एम्प्लॉय आईडी हैंडल कर रहा है? कौन सा एम्प्लॉय आईडी? 26। फिर 452 इसको कौन सा एम्प्लॉय आईडी हैंडल कर रहा है? 33। मतलब आपको फर्स्ट वाले टेबल में सारे एम्प्लॉय का इंडिविजुअल लिखा हुआ है कि कौन किस किस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, और सेकंड वाले टेबल में प्रोजेक्ट डिटेल से, जिसमें कौन सा प्रोजेक्ट किस किस आईडी के थ्रू हैंडल किया जा रहा है, ये लिखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड मेनी टू मेनी। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर भी आपका बहुत सारा एक ही आईडी बार बार रिपीट कर रहा है, मेनी, लेकिन उनका प्रोजेक्ट नंबर डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखिए प्रोजेक्ट नंबर 4552, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 452 आपने देखा, इसको सीन ओब्रायन भी हैंडल कर रहा है, इसको एमी गुया करके भी एक है वो भी हैंडल कर रहा है, इसको स्टीवन बोरैंको करके जो है वो भी, प्लीज डोंट करेक्ट मी इफ आई एम नॉट डूइंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो 452 को दो
3 लोग हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पर भी 4 5 2 को देख रहे हैं, कितने लोग हैंडल कर रहे हैं, 3 लोग हैंडल कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड मेनी टू मेनी. सो दीज आर द टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैव इन डेटाबेस. आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट मी सी द लेंथ ऑफ द वीडियो. इट इज ऑलरेडी 25 minutes. Okay, we are not very much hurry, like we have 2 class in a week now, so we can go smoothly. अब ये टॉपिक को मैं कवर कर देता हूँ बस, ठीक है. इसके बाद अब बाकी का टॉपिक आगे क्लास में. तो मैं कह रहा था, ये जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दिस इज द फ्लो चार्ट or the kind of things that has to be considered while designing an RDBMS application. क्या क्या चीजों, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इन ऑर्डर. ठीक है, ध्यान से समझिए. ये आप इसको अपने कहीं पर भी किसी भी आंसर में इसको यूज कर सकते हैं. वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, आपको किसी भी कंपनी का डेटाबेस क्रिएट करना है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी प्लेस का, सॉरी, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और किस स्टेज बाय स्टेज में आप काम करते हैं. फर्स्ट स्टेज इज गैदर नॉलेज ऑफ द सिस्टम. जैसे मान लीजिए मेरी एक छोटी सी दुकान है, एक दवा की दुकान है, मुझे उसका एक डेटाबेस क्रिएट करना है. सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे डेटाबेस क्रिएट करना होगा. तो गैदर नॉलेज ऑफ द सिस्टम, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर किया कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए. तो दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर विल गैदर एवरीथिंग अबाउट माई रिक्वायरमेंट, कि मेरी दवा के डेटाबेस, मेडिसिन के डेटाबेस में क्या क्या डिटेल्स चाहिए. मेडिसिन का आईडी या मेडिसिन का नेम, मेडिसिन का डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, उसमें उसका प्राइस क्या है, या कोई कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए. जब डेटाबेस का स्टॉक चेक करना होगा मेडिसिन का, तब मैं किस तरह से चेक कर पाऊंगा. उनका रिपोर्ट जनरेट करना होगा, किस तरह से कर पाऊंगा. एक पर्टिकुलर डे में उसका स्टॉक कितना यूज हुआ वो. तो सारे कुछ चीजों को जानना, गैदर करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज द इनिशियल पार्ट. गैदर नॉलेजिंग अबाउट द सिस्टम. एक्नॉलेज द पर्पस ऑफ द डेटाबेस. जब मुझे पूरा का पूरा सिस्टम को स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि कस्टमर आएंगे, मुझे एंट्री करना है मेडिसिन का डिटेल्स, एक बिल जनरेट करना है, कस्टमर को रिटर्न करना है, उसकी कॉपी मेरे पास रहेगी. जैसे मैं कोई मेडिसिन इशू कर रहा हूँ तो उसका स्टॉक डेटाबेस से माइनस भी होना चाहिए. वो सारा कुछ आएगा गैदर नॉलेज ऑफ द सिस्टम में. उसके बाद आएगा एक्नॉलेज द पर्पस ऑफ द डेटाबेस. मतलब डेटाबेस की जरूरत कहाँ पर है पूरे के पूरे सिस्टम में. एक दुकानदार है जिसने बुलाया एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को, वो दुकानदार मैं हूँ, मैंने एक कस्टमर सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाया, तो मुझे डेटाबेस की जरूरत एक्चुअली में किस तरीके का है वो तभी सामने वाले को समझ में आएगा जब मैं अपना पूरा रिक्वायरमेंट उसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, उसको मैं पूरा रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करूंगा, मुझे क्या क्या चाहिए, तब वो मुझे समझाएगा कि आपको यहाँ पर डेटाबेस चाहिए, आपको मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन करने के लिए डेटाबेस चाहिए, आपको अपना इनवॉइस का डिटेल स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए, कस्टमर का डिटेल स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए, अपने स्टाफ का डिटेल स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए. ये सारा कुछ पर्पस के लिए मुझे चाहिए. डिटरमाइन द टेबल. मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक डेटाबेस चाहिए किसके लिए. मान लीजिए इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, जो बिल जनरेट कर रहे हैं उसको डिटेल स्टोर करने के लिए. नाउ आई हैव टू डिसाइड अबाउट द टेबल. व्हाट आर द टेबल दैट हैज टू बी देयर. कस्टमर नेम का एक टेबल होगा, मेडिसिन आइटम्स का एक टेबल होगा, बस. कस्टमर डिटेल्स का एक टेबल होगा, नेम, रेफर्ड बाय द डॉक्टर, कॉन्टैक्ट नंबर, और एक टेबल होगा मेडिसिन आइटम का कि कौन कौन से मेडिसिन आइटम ले रहे हैं. तो ये क्या डिसाइड हो गया, क्या डिसीजन ले लिया कि मुझे 2 टेबल चाहिए मुझे कस्टमर के इनवॉइस वाले डेटाबेस में. देन डिटरमाइन द फील्ड टू बी यूज. तो कस्टमर डिटेल्स में क्या क्या फील्ड यूज होगा, क्या क्या कॉलम यूज होगा. नेम ऑफ कस्टमर, रेफर्ड बाय डॉक्टर, कॉन्टैक्ट नंबर. इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं वो. ये 3 डिटेल. ठीक है. अब मेडिसिन आइटम वाले डेटाबेस में क्या टेबल में क्या क्या फील्ड होगा. नेम ऑफ सीरियल नंबर, नेम ऑफ मेडिसिन, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट, एंड एनी काइंड ऑफ बैच नंबर. तो कर क्या रहे हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को मतलब निपटा रहे हैं. फर्स्ट स्टेप था मुझे क्या चाहिए पूरा सॉफ्टवेयर में. सेकंड स्टेज था कि मुझे डेटाबेस की जरूरत कहाँ है. थर्ड स्टेज था मुझे क्या क्या टेबल चाहिए. फोर्थ स्टेज था
मुझे उस टेबल में क्या क्या फील्ड यानी क्या क्या कॉलम चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप कि उसमें कौन सा ऐसा कॉलम होगा जिसमें कि यूनिक वैल्यू जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यूनिक वैल्यू से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस कॉलम को मुझे प्राइमरी की बनाना है। कस्टमर आईडी है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी पे यूनिक की हो जाएगा, नाम तो बहुत जन का सेम हो सकता है। मेडिसिन वाले टेबल में मेडिसिन का आईडी या मेडिसिन का यूनिक नंबर या बैच नंबर या सीरियल नंबर कुछ होता है जिसको हम लोग यूनिक आईडी बना सकते हैं। तो यूनिक वैल्यू किसको बनाना है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड, दैट इज बेसिकली द डिसीजन ऑफ प्राइमरी की। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप किया जाए, 1 to 1 का होगा या 1 to many का होगा, ये किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप काम करती है। Acknowledge the system, gather the knowledge about the system, acknowledge the need of the database, identifying the table to be used, identifying the fields to be used, identify the fields with the unique value, and identify the relationship to be developed within the table. तो आप ये एक ऑर्डर में इसको दिमाग में रखिए। आई होप ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। मतलब इसको इस तरीके से लीजिए, आपको एक सूट सिलवाना है, आप एकदम से सूट नहीं पहनोगे। अगर आपके घर में फंक्शन है तो आप पहले डिसाइड करोगे कि मुझे किस तरह का सूट पहनना है। आपको 3 पीस पहनना है, आपको नॉर्मल ब्लेजर यूज करना है, या आप कुछ फैशन ट्रेंडी वगैरह में मॉडल में जाओगे। आपकी जरूरत समझ में आ गई, आपका थीम है कुछ, आप उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब आप जाओगे, आपका बजट क्या है, आप उसके बाद जाओगे आप किस पर्टिकुलर फैब्रिक को चूज करोगे या किस पर्टिकुलर कलर के टेक्सचर को चूज करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट उसको लेकर टेलर के पास जाएंगे, वो आपका मेजरमेंट लेंगे किस हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके मेजरमेंट के हिसाब से वो आपके क्लोथ्स को कट करेंगे, फिर उसको स्टिच करेंगे। देन दे विल कॉल 1 day फॉर ट्रायल। इफ दे विल बी समथिंग मिसफिटिंग देन अगेन दे विल जस्ट गिव यू द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम किस तरीके से हो रहा है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग किया ये सोचने से कि मुझे एक सूट सिलवाना है, से सूट लेने तक या सूट पहनने तक बीच में अगर आप देखोगे तो कम से कम 4 से 5 स्टेप है। आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसको थोड़े से ध्यान से सोचकर अगर ब्रेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना लंबा प्रोसेस है। सो दिस इज हाउ सिमिलरली ए डेटाबेस इज डिजाइंड। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू मेक द थिंग्स क्लियर। ये सब ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं, फिर भी हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए काफी है। जो भी असाइनमेंट है आपको गूगल क्लासरूम में भी मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।